स्वामी जी, आप अद्वैत वेदांत एक्सप्लेन कर सकते हैं? अद्वैत वेदांत एक्चुअली हायर लेवल ऑफ नॉलेज, एकदम हायर लेवल जो है नॉलेज का, वही एक्चुअली वेदांत है। और वेदांत में भी अलग अलग हैं, लेकिन जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है एक उस परमात्मा के अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं। इसलिए अद्वैत वेदांत का जो मुख्य सिद्धांत है वो है विवर्तवाद। विवर्तवाद, विवर्त का अर्थ है अपने स्वरूप का त्याग किए बिना अलग अलग रूपों में प्रकट होना। अपना जो स्वरूप है उसको छोड़े बिना अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाना। जो उसके लिए बहुत से एग्जाम्पल दिए कि जैसे रस्सी में सर्प, स्नेक इन रोप। तो रस्सी में जब हमको स्नेक दिख रहा है तो वो हमारे इग्नोरेंस के कारण दिख रहा है, लेकिन जिस समय रस्सी में सर्प दिख रहा है उस समय भी रस्सी तो वही है, रस्सी बदली। तो उसी तरह से अगर हम बहुत ज्यादा नहीं, एक दिन के अपने लाइफ को एनालाइज करें, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वही विवर्तवाद जीवन में है। जब आप सुबह उठते हैं, when you get up, उस समय सेल्फ एग्जिस्टेंस के अतिरिक्त और क्या है? When you open your eyes at morning, that time only self existence, nothing else. Then after some time, when we connected our intellect, then we feel I am. But who I am, we do not know. And the next step is called चित्ता। चार चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अद्वैत वेदांत जिन्होंने भी पढ़ा समझा है वो ये जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इंटेलेक्ट। तो when we connected our intellect, then we feel I am. But who I am, how I am, we do not know. And the next step is the chitta. And when we connect our chitta, chitta is also a part of mind. Man, buddhi, chitta and ahankara. These four is not different thing, only part of one mind. The chitta is our black box. Black box of our sanskaras. This was and previous births. How many births we have taken in this world? Those all impressions are in our chitta. When we connect our chitta,
then we see our those sanskaras. And then we able to know who am I. I am male or female, and where I am in our house and any other palaces. But we are lay down in our bed without any activity. And the last step is our mind. Mind, there is sankalp and vikalp. Sometimes you feel when you get delayed to wake up and you saw the clock, and immediately you feel you are so late, then you decide you have to get up now. And the same moment, your full body is charged as electricity, is flow of the energy. And when you feel I have some time and I want to sleep some more, then you again sleep. And then our mind connected with our organs. And when our mind gives direction, our organs, then our all organs activate. And then we connect our outside world. This is a very long process, but in a short time. Process is very long, but time is very short, then we cannot see it every day. And when you get up, there is also nothing outside any world, only self-existence. And when you come out from your room, you saw your kids, then I am his father, I am his mother, you feel that. And at the same time, our all desires, all our expectations comes out. And after some time, any other comes in front of us. That time, what picture we see? We feel I am that, I am those, anything like that. And from morning to evening, how many forms we have seen ourselves? Mother, father, sister, brother, so many. And when night when go to sleep, that time we leave all these projections forms. So every projections, every form in you, and you are in every forms. But who are you? You are not father, you are not mother, you are not brother, but you are different from all these projections
all these forms. And that time, when you are feeling you are father or you are mother, you not use your self-existence. Everywhere, every time, your self-existence is there. But in our ignorance, we think, what we feel, I am father, I am mother. And that time, those expectations also drop. And we feel, I am happy, I am glad, I am sorrow. All things. So that is the Vivarkavad of Vedanta. You never leave your self-existence and the whole world, and you prepare your different forms, different rupas. And that time also, your self-existence or feeling of the self-existence is the same. I am. But we think that the projection is truth, and we combine those projections and we feel I am happy and I am. The main जो विवर्तवाद अपने स्वरूप का त्याग किए बिना अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाना, सुबह से शाम तक एवरी डे हम वही करते हैं। लेकिन ये जितने भी रूप हैं, जो भी हमने माना सुबह से शाम तक, मैं ये हूँ, मैं ये वो हूँ, इसमें से हम किसको सच्चा कह सकते हैं? अगर हम विचार करें, हम किसी के भी रूप को सच्चा नहीं कह सकते, लेकिन हमने मान लिया मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो वो हमने मान लिया। और जब मान लिया तो फिर उसके अनुसार हम सुखी और दुखी भी अनुभव करने लगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये है, अगर हमको सेल्फ एग्जिस्टेंस की ही नॉलेज न हो तो हमारे लिए संसार की कोई वैल्यू है क्या? अगर हमारे सेल्फ एग्जिस्टेंस का ही हमको नॉलेज नहीं है तो हमारे लिए संसार की कोई वैल्यू है क्या? जो भी हम मानते हैं कि ये अच्छा है, वो है, तो सबका जो बेस है वो क्या है? सेल्फ एग्जिस्टेंस। जो भी हमने माना, मैं माता पिता भाई बहन या और दूसरा संसार का जितना भी होता है, जितना भी हमारा व्यवहार है सुबह से लेकर शाम तक का, इस संपूर्ण व्यवहार का जो बेस है वो क्या है? नॉलेज ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस। और वो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव हर समय, एवरी मोमेंट हमारे साथ में जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए जो अद्वैत वेदांत है वो इसी बात को कहता है, इसी बात को बताने के लिए अलग अलग माध्यम उन्होंने अपनाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि वे उस सेल्फ एग्जिस्टेंस का हो या आत्मसत्ता का हो, उस आत्मसत्ता के अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है ये थोड़ी देर की फीलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जस्ट लाइक ए ड्रीम। जब हम सपना देखते हैं, when we saw the dream, तो वहां क्या है? जहां हम सपना देख रहे हैं, जिस रूम में हैं, और ड्रीम में जो दृश्य हमने देखे, जो पिक्चर हमने देखी, वो आपके उस रूम में आ सकती है क्या? जो भी हम ड्रीम देखते हैं तो उसकी जगह कितनी है वो तो हमारे हाथ के अंदर है, और वो तो एकदम सूक्ष्म जगह है। ठीक है, वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जाती, कोई बात नहीं। तो क्या जहां आप सोए हैं, जिस रूम में आप सोए हैं, तो वो जो सपना आपने देखा, सपने में जो दृश्य आपने देखे, वो दृश्य उस रूम में आ सकते हैं क्या? उसमें नहीं आ सकते। तो एक्चुअली अगर वो होते तो जहां आप सपना देख रहे हैं, तो सुबह तक वो कमरा या वो बिल्डिंग रहती क्या? उसको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। एक्चुअली अगर सपने के उद्देश्य होते तो जहां आप देख रहे हैं वो जगह डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें तो आ नहीं सकते। तो इसका वो थोड़ी देर की फीलिंग मात्र है। तो उसी तरह से सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ भी हमने अपने को माना, वो भी थोड़ी देर की फीलिंग के अलावा और क्या है? बच्चे आपके सामने आए तो उनके साथ जो भी रिलेशन है, माता पिता, दादा दादी, वो फीलिंग आपकी ऊपर आ गई। वो फीलिंग ही तो है, लेकिन हमने उसी फीलिंग को सत्य मान लिया। एक्चुअली अगर देखें तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारा बिहेवियर है, जो कुछ भी है, जो भी पिक्चर हमारे सामने आई, उसके अनुसार हमने एक प्रोजेक्शन अपने ऊपर डाल दिया, और उस प्रोजेक्शन के बिना जीवन का व्यवहार नहीं चल सकता। जीवन के व्यवहार के लिए वो प्रोजेक्शन जरूरी है। लेकिन जो अद्वैत वेदांत है वो इस प्रोजेक्शन का विरोध नहीं करता। प्रोजेक्शन तो चाहिए, लेकिन कितनी देर के लिए? जितनी देर उसकी जरूरत है। उसके बाद उस प्रोजेक्शन को वहीं उतार के रख देगा। जैसे एग्जाम्पल, आप जाते हैं फ्रेंड सर्कल में, फैमिली प्रोग्राम आपके हैं, तो सुख के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं, दोनों में जाना पड़ता है। तो किसी
प्रोग्राम में आप गए, तो जिसके यहाँ आप गए उसके सुख या दुख उससे आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके सुख दुख से आपको कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन जैसे उसके दरवाजे पर आप पहुंचे, वो जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से आपने एक प्रोजेक्शन अपने ऊपर लिया है। अगर सुख की स्थिति है तो प्रसन्न होने का भाव, और अगर दुख की स्थिति है तो दुखी होने का। तो वो प्रोजेक्शन हमने जब लिया तो जितनी देर वहां है उतनी देर हम अपने को सुखी या दुखी दिखाते हैं कि नहीं। और जब वहां से बाहर निकले, जैसे दरवाजे से बाहर पैर आपने रखा, वो जो सुख और दुख का प्रोजेक्शन हमने अपने ऊपर डाला था उसको वहीं उतार के छोड़ दिया है कि नहीं। उसको हम साथ में लेके नहीं आते। बस वही जीवन में भी चाहिए। अद्वैत वेदांत भी वही कि वही जब तक के बॉडी है तब तक व्यवहार तो चलेगा, और उस व्यवहार के लिए वो प्रोजेक्शन भी हमको अपने ऊपर लेने पड़ेंगे। मैं भाई हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, लेकिन उसको जब उसका काम पूरा हो जाए तो कहा उसको वहीं उतार के छोड़ दो। बस हम लोग यही नहीं कर पाते। इसलिए जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में यही अंतर है। ज्ञानी है उसका भी व्यवहार, खाना पीना है जो एक नॉर्मल है, वो दोनों का एक जैसा है। जो ज्ञानी है वो भी आपको कार्य करते हुए दिखेगा, तो वहां भी जीवन का व्यवहार, गुस्सा आदि वो भी आपको दिखेगा। लेकिन वो कितनी देर का, जितनी देर उसकी जरूरत है उतनी देर। उसके बाद तो ज्ञानी ने क्या किया, उस प्रोजेक्शन को उतारा, वहीं छोड़ दिया। इसलिए वो सुखी भी नहीं और दुखी भी नहीं। तो जब वो कार्य कर रहा है उस समय भी उसको सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं, और जब उससे बाहर निकला तब भी लेना देना नहीं। और हम लोग जब कार्य कर रहे हैं उस समय भी सुखी दुखी, और उसके बाद भी वही सुखी दुखी। दूसरे जो अद्वैत वेदांत है वो यही कहते हैं सब कुछ करो, लेकिन वो बटन अपने ऊपर लेके मत चलो। बच्चे हैं तो उनके लिए जो ड्यूटी है वो भी करनी पड़ेगी उस समय। माता पिता का जो भी है वो प्रोजेक्शन उनको लेना पड़ेगा, लेकिन जहां वो कार्य पूरा हुआ उसको वहीं उतार के रख दो। बस वो हम लोग नहीं कर पाते। तो इस तरह से तो अब जो दृश्य हमारे सामने आया, जो पिक्चर सामने आई, उसके अनुसार हमने अपने ही एक अलग रूप को प्रकट किया कि अपने ही रूपों को हमने प्रकट किया, माता पिता भाई बहन आदि उस रूप में। लेकिन ये सब करने पर भी हमने सेल्फ एग्जिस्टेंस को नहीं छोड़ा, हमने सेल्फ एग्जिस्टेंस का त्याग नहीं किया। तो इसी का नाम है विवर्तवाद। तो अद्वैत वेदांत यही कहता है कि वो आपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये तो सारा जो कुछ भी है ये उस सपने की तरह एक फीलिंग मात्र है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बस हमने उस फीलिंग को जब सच्चा मान लिया तो हम इस संसार के बंधनों में बंधते चले गए। और जिसने उसको केवल फीलिंग माना
वो उससे मुक्त हो गया है। तो इसलिए एक जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए ये फीलिंग ही सब कुछ है। और जो साधक है उसने इस फीलिंग को झूठा माना, और जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में ये सच्ची भी नहीं झूठी भी नहीं, केवल एक फीलिंग मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो अद्वैत वेदांत का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि उस विवर्त के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। उस आत्मसत्ता, उस सेल्फ एग्जिस्टेंस के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ है ही नहीं। ये जो है तो अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत विवर्तवाद। और क्लियर? कुछ नया सीखा, लर्न समथिंग न्यू। और स्वामी जी, प्रोजेक्शन को कैसे त्याग करें? जैसे हमने प्रोजेक्शन को एक्सेप्ट किया, मैंने एग्जांपल दिया ना, कहीं रिश्तेदारी में आप गए, सुख और दुख की परिस्थिति है, तो उसमें जैसी सिचुएशन है वैसा भाव हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि नहीं। और जब वहां से बाहर निकले उस भाव को हमने वहीं छोड़ दिया। लेकिन जीवन के व्यवहार में हम वो नहीं कर पाते। प्रोजेक्शन तो हमने ओढ़े, लेकिन उसको जो छोड़ना चाहिए था वो हम नहीं कर पाते। उसके साथ हम अटैच हो जाते हैं। जब उसके साथ हम अटैच हो गए तो फिर वो जीवन में सुख और दुख वो जीवन में तो चलता रहेगा। अब वो है कि उसको फिर विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा धीरे धीरे उससे बाहर निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं स्वामी जी? रिलेशन तो वहीं पे है। नहीं, उसके लिए चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन सुनने से या एक दिन के उससे वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत से वक्ता बोलते हुए चिंतन करो, लेकिन चिंतन कैसे करना वो कोई नहीं बताता। तो इसलिए और क्या चिंतन करना है, इसलिए वेदांत का एक ग्रंथ है पंचदशी, वहां उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 बातों का चिंतन करना चाहिए। विचारे तस्मात् जगत जीव परात्मा, 3 बातों का विचार करो। क्या क्या? पहला, जगत में संसार क्या है, इसका विचार करो, क्योंकि हमने तो कभी विचार किया ही नहीं। अगर कभी बच्चे आपसे पूछें कि वे संसार क्या है, हमारे पास कोई आंसर है क्या? संसार है हम मानते रहे, लेकिन संसार क्या है उसका हमारे पास कोई आंसर है क्या? हमारे पास कोई आंसर नहीं। तो फिर संसार जिसको हम कहते हैं वो क्या है? वहां 3 चीजें, वासना, भावना और संस्कार। भावना, फीलिंग्स, और जब वो फीलिंग्स और ज्यादा मजबूत हुई तो एक्सपेक्टेशन और इम्प्रेशन। फीलिंग, एक्सपेक्टेशंस एंड इम्प्रेशन, इन 3 का मिला हुआ जो रूप है उसी का नाम संसार है। जिसको भी हम संसार कहते हैं, संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन वहां ये 3 चीजें, एक्सपेक्टेशन, फीलिंग एंड इम्प्रेशन। तो सामने दृश्य आया, दृश्य के सामने आते ही हमारे जो इम्प्रेशन
वो जागृत हुए। किसी भी व्यक्ति को जब आप देखते हैं, उससे पहले कोई भाव, कोई वो नहीं है। उस फेस को आपने देखा तो अगर परिचित है तो वो इम्प्रेशन, उसको आपने 10 साल पहले देखा या 20 साल पहले देखा, वो इम्प्रेशंस आपके प्रकट हुए। और उन इम्प्रेशंस ने क्या किया, आपके अंदर एक फीलिंग को जागृत किया, और उस फीलिंग ने एक्सपेक्टेशन को सामने ले आया। और वो एक्सपेक्टेशन, फीलिंग और इम्प्रेशन, इन तीनों के सामने आते ही आपका मैं, मेरा का भाव और हमारा संसार चल पड़ा। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि पहले संसार का विचार करो, ये संसार वास्तव में क्या है। तो जब आप उसका विचार करेंगे तो क्या है, संसार जो भाव है वो धीरे धीरे अपने आप दूर होता चला जाएगा। और समस्या हमारे यहाँ क्या है, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बचपन से ही हमारे मन में एक डर डाल दिया है कि आपको साधना करनी है या ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो एक डर वो बैठा हुआ है। तो इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, तो छोड़ने के भाव को पहले मन से निकाल। कई बार व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ वो जो डर है वो सामने जब आता है तो फिर वो वहां अटक जाता है। इसलिए कुछ छोड़ना कुछ नहीं है। तो हमारे चिंतन के द्वारा जैसे जैसे हमारे जीवन में मैच्योरिटी आएगी, वो जो छूटने वाली चीजें वो अपने आप छूट जाएंगी। जैसे बचपन में खिलौनों से खेलते थे कि उन खिलौनों को छोड़ना पड़ा या छूट गए? छूट गए। कब छूटे हमको पता भी नहीं चला। और क्यों छूटे? जैसे जैसे जीवन में मैच्योरिटी आने लगी वैसे वैसे वो खिलौने अपने आप छूट गए। तो उसी तरह से जब ये साधना के पक्ष में जैसे जैसे मैच्योरिटी हमारे अंदर आएगी, ये संसार भाव धीरे धीरे अपने आप छूटता चला जाएगा। तो इसलिए कहा कि संसार का पहले विचार करो, एक्चुअली संसार है क्या। जब विचार करेंगे तो संसार नाम की कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है, तो वो संसार भाव वहां कम होने लगेगा। लेकिन मैं तो हूं, तो अब जिसको हम मैं कह रहे हैं, कहते हैं उस मैं का भी विचार करो, तो मैं नाम की भी कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है। तो वो चिंतन करते करते, विचार करते करते फिर क्या बचेगा? ब्रह्मेव अवशिष्यते। केवल उस परमात्मा भाव, ईश्वर भाव के अतिरिक्त फिर कुछ वहां नहीं बचेगा। तो अब जहां तक थिंकिंग की बात है, फिर कैसे विचार करना, उसके लिए दो चीजें। एक जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो, और हमारे जीवन का अनुभव। हम सारी चीजों को गलत कह सकते हैं, लेकिन अपने जीवन का जो अनुभव है हम उसको गलत नहीं कह सकते। इसलिए जो कुछ भी आप प्रवचन सुनते हैं, जो कुछ भी आपने बुक्स में पढ़ा, इसे पढ़ लिया, अच्छा लगा इसलिए मान लो, ऐसा नहीं। कहते उन सब बातों को आप अपने जीवन के अनुभव के साथ टैली करके देखो, दोनों को सामने रखो। तो जब इन दोनों को सामने रख के आप विचार करेंगे तो किसी जब तक आप पहुंचेंगे। और जब वो निश्चय तक आप पहुंचेंगे तो उतने अंश में ये जो संसार भाव है वो अपने आप पीछे हटता चला जाएगा। तो इसलिए उसके लिए शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया कि
विचार एवं तस्य औषधम, केवल विचार ही उसकी दवा है और दूसरी कोई मेडिसिन है ही नहीं। संसार बंधन से ऊपर उठने के एकमात्र मेडिसिन क्या है? विचार ही है। और वो विचार आवश्यक है, जरूरी है। हुआ क्लियर? Swamiji, would you talk something about the Ananya Bhakti? तो अनन्य मीन्स अनन्य न अन्य, जहाँ दूसरा न हो। और लोगों ने दूसरा न हो का अर्थ कर दिया कि अगर कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो वे राम की नहीं करनी, राम की कर रहा है तो शिव की नहीं करनी, ऐसा लोगों ने अर्थ कर दिया। और साउथ इंडिया में तो बहुत भेद है इसमें। तो अनन्य का अर्थ है कि हर रूप में उसी परमात्मा को देखना। जिस किसी भी रूप के प्रति आपकी श्रद्धा है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जो भी। इसलिए हमारे ऋषियों ने इतना जो देवताओं की कल्पना की, वो किस लिए? वो इसीलिए कि वे एक रूप के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं बनी, कोई बात नहीं, किसी दूसरे रूप के प्रति बनेंगे। तो ये जितने भी रूप में किसी न किसी के प्रति तो आपके अंदर वो श्रद्धा का भाव और जागृत होगा। तो जहाँ आपकी श्रद्धा है, उस रूप को लेकर के आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए फिर जिस किसी भी माध्यम को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हर जगह हर रूप में उसी तत्व को देखना, तो उसका नाम है अनन्य भक्ति। मतलब जिस किसी भी रूप के प्रति आपकी श्रद्धा है, उसी रूप में सब रूपों को देखना। इसलिए वहाँ अनन्य का अर्थ एक की भक्ति कर रहे हैं, दूसरे की नहीं करना, ऐसा नहीं। उस ईश्वरीय भाव को अपने अंदर जागृत करना। और साथ ही साथ एक बात और बताता हूँ, बहुत से लोगों के अंदर आजकल ये भी होता है कि वे सगुण भक्ति श्रेष्ठ की निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ। एक प्रश्न गीता में अर्जुन ने भी भगवान से किया, तो क्या भगवान ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वे सगुण और निर्गुण का जो झगड़ा है, ये मूर्खों का झगड़ा है। एक्चुअली सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे से जुड़े। जैसे आप यहाँ आते हैं, यहाँ अलग अलग मूर्तियां हैं, हर एक का आप दर्शन करते हैं कि नहीं? तो यहाँ आपने किसका दर्शन किया? सगुण साकार रूप का। तो आपका जो ध्यान है वो कहाँ गया? आपका जो अंतर मन का भाव है वो उस निराकार के साथ जुड़ा ही नहीं। हर मूर्ति के रूप में आप एक ही को देखते हैं कि अलग अलग? जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान के रूप में, तो हर मूर्ति के रूप में तो वही एक ही ईश्वर भाव है कि नहीं? तो सगुण के माध्यम से कहाँ पहुंच गए आप? निर्गुण तक पहुंच गए। और जब कहीं कोई कथा सुन रहे हो, कथा में भगवान की कोई चर्चा आई, जिस किसी भी उसकी चर्चा आई, तो उस चर्चा के माध्यम से आपने अपनी कल्पना से भगवान का एक रूप वहां बना लिया कि नहीं अपने हृदय में? तो निर्गुण की चर्चा से भी आप कहाँ पहुंचे? सगुण में पहुंचे। और सगुण का दर्शन करने से आपका जो हृदय का भाव है कहाँ पहुंचा? निर्गुण तक। तो अब बताओ कौन सी श्रेष्ठ? ऐसा क्यों किया गया? हम लोग को
कंफ्यूज करने के लिए किया गया है कि जितने ग्रंथ लिखे हैं आप जो पढ़े हैं उसके अंदर वो उसी बात को एम्फसाइज क्यों करते हैं? वो इसीलिए कि वो जो समता का जो भाव है वो हमारे अंदर आए। जैसे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं, और हमारे धर्म गुरु जो होते हैं वो इन बातों को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर करके, जैसे आपने बोला कि जो शिव की पूजा करते हैं वो कहते हैं शिव ही इज द गॉड, जो राम की पूजा करते हैं वो कहते हैं राम इज द गॉड। नहीं, वो बिना समझे, ना समझे उसको हम कह सकते हैं, इग्नोरेंस। और जो हमारे पुराण हैं, अब आप देवी भागवत पढ़ो तो वहाँ देवी को सबसे ऊपर बताया, शिव पुराण पढ़ोगे तो उसको सबसे ऊपर। तो हर एक पुराण का अपना अपना देवता है कि नहीं? तो वो इसीलिए कि लोगों के अंदर ये छोटे बड़े का जो भेद है वो खत्म हो। इसलिए आजकल वो भी बड़ा चल रहा है कि भाई कौन सा भगवान बड़ा कौन सा छोटा। तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। तो रोज के व्यवहार में आपके जो फैमिली मेंबर हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपसे बड़े भी हैं, जो भी हैं, अगर कोई आपका वर्णन करे तो किस रूप में करेगा? उससे जो रिश्ता है, जो रिश्ता बच्चे हैं तो उनके लिए आपका माता ही रूप श्रेष्ठ है, माता पिता हैं तो उनकी दृष्टि में पुत्री का रूप श्रेष्ठ है। तो जो हमारा व्यवहारिक संबंध है हर एक की दृष्टि में आपका वही रूप श्रेष्ठ है, उसको दूसरे रूप से वो देख नहीं कोई मतलब नहीं है। तो अब ये जितने भी रूप हैं और जिसने भी वर्णन किया सही है कि नहीं, अपनी अपनी दृष्टि से हर एक ने सही वर्णन किया, लेकिन वो पूरा है ऐसा तो नहीं कह सकते। तो इसी तरह से ये जितने भी देवी देवता हैं वो जिसके प्रति श्रद्धा है उसकी दृष्टि में उसके लिए वो रूप श्रेष्ठ है। और हमारी जिसके प्रति श्रद्धा हमारे लिए भगवान का वो रूप श्रेष्ठ है। तो अभी आपके ये जितने भी रूप हैं, पुत्री भी है, माता भी है, पत्नी भी है, जो भी रूप है, तो इनमें से आप डिवाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा रूप श्रेष्ठ है। जब हम अपने रूप को डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर भगवान को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हमारी श्रद्धा जिसके प्रति है हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। और ये जितना भी वो है, तो अगर सही अर्थों में ये कहें तो मैं तो इसको एक तरह की बिजनेस पॉलिटिक्स मानता हूँ। लेट्स लीव दैट आउट। बट लेकिन जैसे हमारे इंडियन हाउस होल्ड जितने भी हैं, हम हमारे सबके घरों में देवी की भी उतनी ही पूजा की जाती है जितनी विष्णु जी की जाती है। निराकार और निर्गुण ब्रह्म तो बहुत हायर लेवल की बातें हैं जो ऑर्डिनरी हाउस होल्ड्स में नहीं होती हैं, लेकिन नॉट एवरीबडी नोज देम। तो इट्स नॉट रॉन्ग कि अगर आपने आज विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ किया है, कल आपने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ किया है, इज देयर एनी डिफरेंस? उसमें तो वहाँ मेन उद्देश्य है कि आपके अंदर उस ईश्वरीय भाव को जागृत करना। Right. And you are only doing it for that purpose. You are not doing it for any kamna, siddhi or anything. All you want is कि I should rise to myself, like you said, self, आत्म भाव में आपको बढ़ना आगे. That's your only purpose. You are not doing it to attain worldly things or anything. So is it wrong कि अगर आप देवी जी को भी मानते हैं और आप विष्णु भगवान और राम कृष्ण को भी मानते हैं, वो आपके ऊपर है। नहीं, लेकिन दोनों में श्रद्धा है। नहीं, इसीलिए वो आपके ऊपर है कि आप कितना करते हैं, लेकिन मेन पर्पस है कि हमारे अंदर वो ईश्वरीय भाव जागृत हो। जैसे So that's from where I was coming when I asked you about Ananya Bhakti, कि are we breaching that? When we are doing Lalita Sahasranam and Vishnu Sahasranam both, am I breaching that code of Ananya Bhakti? Am I? न अनन्य भक्ति वहाँ वही है ना, ईश्वरीय भाव किस माध्यम से आपका, और फिर वो करते करते जब आप एक लेवल पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ फिर ये सब पीछे छूट जाएंगे। But as long as नहीं छूटा तब तक हम करते हैं। वो तो हमारे सत्वगुण को बढ़ाने के लिए, हमारे चित्त की शुद्धि के लिए वो सब साधन है। जैसे जैसे वो चित्त शुद्ध होगा वैसे वैसे हमारे अंदर वो नॉलेज अपने आप प्रकट होगा।
और जब प्रकट होगा तो वो समझने की कैपेसिटी हमारे अंदर आएगी, तो फिर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है। तो उस लेवल पे जाके फिर हम एक उस पर आ जाएंगे। तो इसलिए अनन्य का अर्थ हुआ कि किसी भी रूप को आप लो, लेकिन भाव वहाँ वही ईश्वरीय भाव होना चाहिए, क्योंकि देवी के रूप में भी हम परमात्मा को ही मानते हैं कि नहीं, या देवता के रूप में भी उसी को मानते हैं। तो मेन उद्देश्य वहाँ वही है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था, मैं घर में आपके मंदिर रखा है, तो आपकी श्रद्धा देवी के प्रति, आपने देवी की प्रतिमा रखी है, आपके घर के दूसरे मेंबर हैं वो शिव की प्रतिमा ले आए, आपने सब मंदिर में रखी। और छोटे बच्चों को सुबह आप बोलते हैं भाई घर से बाहर निकलने से पहले मंदिर में दर्शन करके जाना, बोलते हैं। लेकिन कभी आपने उन बच्चों से पूछा कि आपने कौन से भगवान का दर्शन किया? कभी नहीं पूछा। वो मतलब ही नहीं पूछने का, क्योंकि वहाँ हमारा भाव क्या है? परमात्मा। भाई वो मंदिर में जाए तो उसके अंदर ईश्वरीय भाव उसके अंदर प्रकट हो, उतना ही हमारा वहाँ उद्देश्य है। लेकिन जीवन के व्यवहार में जब आते हैं तो हम इन्हीं बातों को लेकर के आपस में लड़ने लगते हैं। तो इसलिए वो हमारा इग्नोरेंस कहते हैं, जो भी कहते हैं वही। Purpose of life क्या है? Is it to त्यागो everything or is it to experience what earth has, to experience and move on? This is a very difficult question. First we have to analyze what is the life. When we analyze what is the life, then we can decide what is the purpose of our life. And mainly think, the purpose of every action is happiness, प्रसन्नता। तो कैसी प्रसन्नता, कैसा सुख हम चाहते हैं? अगर कोई हमसे पूछे तो हमारे पास कुछ साधारण कुछ शब्द हैं, तुरंत हम कहते हैं परम सुख। तो जीवन का जो गोल है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, तो हमारे पास शब्द है कि परम सुख, या हम कह देते हैं मोक्ष। लेकिन एक्चुअली वो है कैसा, उसको जाने बिना तो केवल शब्दों को बोलने का कोई और नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने उसको क्लियर किया। हर एक व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? सुख है। तो कैसा सुख? तो कहते हैं जैसा सुख आपको साउंड स्लीप में मिलता है, जैसा सुख आपको साउंड स्लीप में मिलता है, और साउंड स्लीप जैसा सुख तो साउंड स्लीप में ही मिलेगा, वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता। तो फिर हमको कैसे वो सुख मिलेगा? तो उसके लिए फिर प्रोसेस वही है। इसलिए हमारे यहाँ 3 प्रोसेस, प्रोसेस टू डेथ, प्रोसेस टू स्लीप एंड प्रोसेस टू नॉलेज, तीनों इक्वल है। जब सोने के लिए आप बेड पर गए तो सबसे पहला काम बॉडी को फ्री छोड़ दिया, हेलो रिलैक्स। तो उसका अर्थ क्या है? इस संसार के साथ हमारी जो फिजिकल कनेक्टिविटी थी उसको हमने कट ऑफ कर दिया। लेकिन फिर भी माइंड में कुछ विचार चलता रहता है। अगर वो विचार ज्यादा चले तो उसको भी हम छोड़ना चाहते हैं। तो मेंटल कनेक्शन जो संसार के साथ था वो भी जब हमने कट ऑफ किया तो हमको कब नींद आई वो पता नहीं चला। तो सेम प्रोसेस डेथ का भी है। जैसे पहले भी क्या है, पहले जो तो हमारे ऑर्गन्स फिजिकल काम करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे, फिर बाद में मेंटल कनेक्शन भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और जिसमें वो पूरी तरह से हो गया उसी समय, लेकिन वो
बताना वो संभव नहीं है, काफी लंबा प्रोसेस है। और उसी तरह से नॉलेज का भी, तो जैसे हमने फिजिकल कनेक्टिविटी छोड़ी साउंड स्लीप तक जाने के लिए, क्योंकि कितना भी कुछ भी साधन जगत में हो, कितनी भी बढ़िया वस्तु हो, हम कितना जाग सकते हैं, एक दिन 2 दिन, साउंड स्लीप में तो जाना ही पड़ता है। क्यों? उस सुख के बिना ये जो संसार का जो सुख है, इसकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए संसार में भी हम वैसा ही सुख चाहते हैं। तो अब उस सुख तक जाने के लिए फिर क्या है कि जो फिजिकल अटैचमेंट हमारा संसार के साथ है, तो धीरे धीरे इसको नॉलेज के द्वारा इसको कट ऑफ करना, और फिर मेंटल जो कनेक्शन है, जो मैंने अभी कहा फीलिंग, उसको भी धीरे धीरे नॉलेज के द्वारा कट ऑफ करना। तो जैसे जैसे उसको हम अलग करते जाएंगे, वैसे वैसे हम उस आनंद की स्थिति तक पहुंचते जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि जब सुबह आपकी आंख खुली, उस समय सुख है कि दुख है? उसमें सुख भी नहीं है और दुख भी। सुख दुख तो बाद में आया, जब आप इस संसार के साथ कनेक्ट होते तब वो सब सुख दुख के भाव है। लेकिन जितनी देर आप अपने रूम में हैं, जितनी देर इस संसार से आप कनेक्ट नहीं हुए, उतनी देर सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। और जब सुख और दुख दोनों ही नहीं है, तो वो क्या है? वो आनंद की स्थिति। तो अभी तक वो नेचुरली हो रही है, लेकिन ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे नॉलेज के द्वारा अपने को उस स्टेज तक ले जाना, तो वही जो है तो ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल है।